Hello students, welcome to Rising Stars Tuitions. I am Shailesh Sharma and today we are going to start our second chapter of class 10 mathematics, that is polynomials. Now you have studied something about polynomials in class 9 also. Like suppose polynomials are usually represented by p of x. Suppose we are having p of x is equal to 4x. There is one single term here. So if there is only one term, then polynomial is called monomial. If we are having two terms, one term is 3x square, second term is 7, which are separated by either plus or minus sign. Okay, plus sign भी हो सकता है, minus sign भी हो सकता है. So that if it is having two terms, then it is called binomial. Suppose it is having three terms. First term is x, second term is x cube, third term is minus 4. Then it is called trinomial. These are types of polynomial. तीन से ज़्यादा terms भी हो सकते हैं, तब हम उसको in general polynomial बोल देते हैं. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक term है तो वो polynomial नहीं है. One term is also polynomial, two term also, three term and n terms. 4, 5, 6 जितने भी terms हैं सब polynomial है. Now degree of polynomial. Degree means अगर हमारा p of x, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि polynomial p of x ही हो. Polynomial p of t भी हो सकता है. Means any function of t. Suppose like t square plus 7t plus 4. So here also we are having three terms, so it is trinomial. Okay, then degree. Degree means highest power of variable. जैसे यहाँ पर अगर देखोगे 4x वेरिएबल इज x, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल तो आपको पता होगा. अल्फाबेट्स आर वेरिएबल एंड नंबर्स आर कांस्टेंट. जिसका वैल्यू बदलता है वो वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है वो कांस्टेंट. लाइक 7 मतलब 7, उसका और कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन x, t इनकी कोई भी आंसर आ सकते हैं. सो दे आर वेरिएबल. सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो यहां देखोगे तो x का पावर है 1, सो इसका डिग्री है 1. हियर द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, सो डिग्री इज 2. हियर द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3. Here the first term power is 1 and the second term power is 3. तो जरूरी नहीं है कि आपको लाइन से दिया होगा कि पहले ज्यादा पावर फिर कम पावर. आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा हाईएस्ट पावर कौन सा है. सो हियर हाईएस्ट पावर इज 3. हियर अगेन t is my variable and highest power of t is 2. Okay, so if degree is 1, then polynomial is called linear polynomial. If degree is 2, then it is called quadratic polynomial. If degree is 3, then it is called cubic polynomial. और इसका भी डिग्री 2 है, so this is also quadratic. तो ये तुमको पूछ सकता है कि polynomial का डिग्री कितना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिग्री फाइंड करो. सो ये हो गया हमारा टाइप एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. So suppose there is a question, if p of x is equal to 3x square plus 4x plus 2, find p of x at x equal to 2. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. p of x दिया हुआ है, x की जगह पे अगर 2 रहेगा तो p of x कितना हो जाएगा. सो सॉल्यूशन विल बी p of x is equal to
3x square plus 4x plus 2. What we have to do? Just put the value of x. x कितना दिया है? 2. So just write p of 2 और जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर दो 2 से. So 3 will be 3 into x के प्लेस पे 2 square, 4 into 2 plus 2. So here will be 3, 2 square is 4, 4 2s are 8 plus 2, 3 4s are 12, 8 plus 2 10, that is 22. So p of 2 is equal to 22. This is how we will find value of a polynomial at a given number. किसी पर्टिकुलर नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू, और ये नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, कुछ भी, रैशनल. याद रखना कि आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह वो पुट कर देना है. नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ये भी हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं. ठीक है, सो इफ p of x is equal to 0 at x equal to k, then k is called zero of polynomial. ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूं. लाइक सपोज p of x हमको गिवन है 3x माइनस 6. ठीक है, 3x माइनस 6. तो अगर मैं रखता हूं x के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे कितना रख देता हूं? 2. तब वैल्यू निकालो p of 2. x के प्लेस पे 2 माइनस 6, 3 2s is 6 माइनस 6, तो ये 0. p of 2 is 0. अभी इससे पहले जब वैल्यू निकाला था तो p of 2 आया था 22, तो वो वैल्यू हो गया. अभी p of 2 कितना आ रहा है? 0. ये भी वैल्यू है, लेकिन हमको वैल्यू कितना मिल रहा है? 0. कब मिल रहा है? जब x इक्वल टू 2 रख रहे हैं. सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 is a zero of polynomial. ठीक है, अब ये तो मैं तुमको बोला कि हाँ तुम 2 रखो तो हमको 0 मिल गया, बट हमें कैसे पता चलेगा 2 ही रखना है? तो उसका सिंपल सा टेक्निक है कि आप क्या करो, px को रख दो 0, px इक्वल टू 0. तो px कितना है? 3x माइनस 6. सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 3x इज इक्वल टू 6. सो x विल बी 6/3 और x इक्वल टू 2. ठीक है, क्योंकि हम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ पे 0 मिलेगा. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा. तो हमको x की एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. हमको ये तो पता चल गया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. अब हमको देखना है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में उसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो जैसे हमारे पास ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 2. तो अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू के लिए px निकालता हूँ, लाइक x इक्वल टू 0 रखता हूँ, x के प्लेस पे 0, तो p of x मिलेगा 2. x के प्लेस पे 1 रखूंगा तो p of x मिलेगा 2 1 2 प्लस 2 4, और x के प्लेस पे -1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0. ठीक है, अब अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं, इस एक्सिस में x, इस एक्सिस में p of x.
x के प्लेस पे रखा मैंने 0, तब मुझे वैल्यू मिला 2। ठीक है, सपोज ये 1 2 3 4, 1 -1, 0 रखा तो कितना मिला 2, ये एक पॉइंट हो गया। 1 रखा तो मिला 4, ये एक पॉइंट हो गया। और -1 रखा तो मिला 0, यानी यहीं पर। तो अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब इसको चाहे इधर जितना मर्जी बढ़ा दो, चाहे इधर जितना मर्जी बढ़ा दो, ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा, ओनली वन प्लेस। ठीक है, 8 कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन प्लेस। ओके, ये हो गया लीनियर के लिए, जिसका डिग्री 1 था। लीनियर का डिग्री 1 होता है, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट किया है। नेक्स्ट यही चीज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पर x के प्लेस पे -2 रखता हूं, एक मैं रख के बता दे रहा हूं, p ऑफ -2, तो जहां जहां x है वहां -2 रखेंगे। -2 स्क्वायर, -3 इंटू -2 -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 6 -4, यानी कितना आ रहा है 6। सिमिलरली जब आप -1 रखोगे तो मिलेगा 0, 0 रखोगे तो मिलेगा -4, 1 रखोगे तो -6, अगेन -4, 2 रखेंगे तो सॉरी -6, 2 रखेंगे तो -6, -4 एंड 0। तो ये आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं निकालोगे तो भी ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब हम अगर इसको प्लॉट करने जाएं तो x की वैल्यू हमने क्या क्या रखी है, हमने रखी है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया x। और अगर हम p ऑफ x की बात करें तो p ऑफ x की वैल्यू जब मैंने -2 रखा तब आई है 6, यहाँ कहीं पे सपोज 6 है। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। सो जब हम -2 रख रहे हैं तब हमको वैल्यू कितना मिल रहा है 6, ये कोई पॉइंट हो गया। -1 पे हमको मिला 0, 0 पे मिला -4, 1 पे मिला -6, 2 पे भी हमको मिला -6। ठीक है, 3 पे -4 और 4 पे वापस 0। एक 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो 5 पे हमको ये मिलेगा 6, 5 पे 6। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। ये एक बार -1 को x एक्सिस पे कट कर रहा है, एक बार 4 पे, क्योंकि इसके जो 2 जीरोज हैं, ये देखो, जब -1 रखा है तो 0 मिला है, और जब 4 रखा है तो भी 0 मिला है। तो जहां जहां इसको जीरोज थे वो x एक्सिस पे कट हुए। ठीक है, तो यहां पे अगर ध्यान दोगे, इट कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल, कंक्लूजन इसका ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 था वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जिसके 2 जीरोज हैं या जिसका डिग्री 2 है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। यही चीज अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो ये x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता। तो यही आपका कंसेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1,
उसमें आपको बस ये बताना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसके हिसाब से जो डिग्री होगा वो क्या होगा, या फिर उसके कितने जीरोज होंगे। तो जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट वाले का ग्राफ देखो, ए का, फर्स्ट का, इसमें जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी इसके कितने जीरोज होंगे, जीरो, नंबर ऑफ जीरोज विल बी जीरो। जो सेकेंड वाला है वो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सो हियर नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1। थर्ड वाला जो है अगर देखोगे ध्यान से तो 3 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। फोर्थ वाला 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 4। फिफ्थ वाला 4 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 5। एंड द लास्ट वन ये 3 जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे पूरा कट करके क्रॉस हो रहा है, 2 जगह पे जस्ट टच करके जा रहा है, तो टोटल 3। सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3। दिस इज अवर फर्स्ट exercise. Next topic is relation between zeros and coefficients of polynomials. ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसका डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, 2 जीरोज होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial। ठीक है, अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, दोनों को प्लस किए मतलब दोनों सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए, वेयर ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट्स। ओके, सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज वी आर हैविंग p of x is equal to 2x square minus 8x plus 6, 2x square minus 8x plus 6। so here अगर कंपेयर करोगे आप इससे, तो a के प्लेस पे है 2, b के प्लेस पे है -8 और c के प्लेस पे है 6। ठीक है, हमको निकालना है इसका जीरो, तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर देखोगे आप 9th में इसको पढ़े हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। 8 को हमने ब्रेक किया 2 और 6 में, 6 2 ज़ा 12, प्रोडक्ट a इंटू सी, 6 2 ज़ा 12। अब शुरू के दोनों से 2x कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा x माइनस 1, और यहां से भी हम 3 कॉमन निकाल देंगे, सॉरी 6 कॉमन निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अलग से 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 1, और इसको 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 3। तो दो वैल्यूज मिल गई,
अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 3। तो दो जीरोज हैं इसके, वो हैं अल्फा बीटा। अब आप चेक कर लो, वेरीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 + 3 कितना आएगा 4। और आप चेक करो माइनस बी बाई ए, तो -8 बाय ए के प्लेस पे है 2, सो दैट इज ऑल्सो 4। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b बाई ए। और ऐसे ही अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं तो 1 × 3 इज 3। और अगर मैं c बाई ए निकालता हूं तो c बाई ए इज 6/2, 6/2 इज ऑल्सो 3। So we can write alpha into beta is c by a.